कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में न समा। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समा। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂತೆ ಆತನು ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೌನವಾಗಿದ್ದು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವುದು, ಪರಾತ್ಪರನೇ ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಸಂಕೀರ್ತಿಸುವುದು ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ವೀಣಾ ಸ್ವರಮಂಡಲಗಳಿಂದಲೂ ಕಿನ್ನರಿಯ ಘನ ಸ್ವರದಿಂದಲೂ ಹೊತ್ತಾರೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವನ್ನು, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವುದು ಉಚಿತವಾಗಿದೆ. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳೋಣ. ದಿವಸ ನಾವು ದೇವರ ಸತತ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದಂತಹ ತಂದೆಯಾದಂತಹ ದೇವರೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಕೃಪಾಭರಿತನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಇದುವರೆಗೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನ ಕೃಪಾತಿಶಯದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನು ನೀನು ಕಾಪಾಡಿ ನಡೆಸಿದಿ. ಸಭೆಯನ್ನು ಇದುವರೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಥಿರತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉಂಟು ಸ್ವಾಮಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ತರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಅವರಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀಡು. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲ ಮುಪ್ಪಿನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಯರ ಸಲುವಾಗಿಯೂ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಮುಟ್ಟಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾವ ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೂ ನೀನು ಅವರ ಕೈಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡಲಾರದೆ ನೀನೇ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕರ್ತನೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ. ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಂತ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಸಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟು ಕಲಿತಾ ಇರುವಾಗ ನೀನೇ ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಡೆಸು. ಇನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಡೆಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ, ಯಾರು 12th ಪಾಸಾಗಿ ಮುಂದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ಗಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೋ, 10th ಮಕ್ಕಳು ಪಾಸಾಗಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೋ ಸ್ವಾಮಿ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನನ್ನು ಕೊಡು. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿ ನೀನು ನಡೆಸೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕರ್ತನೆ, ಮುಂಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳುಂಟು ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ದಿವಸ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ನಿನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದ
ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ನಿನ್ನ ಕೃಪಾತಿಶಯದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ನಡೆಸೆಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದೆನಿಸಲ್ಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೊಳಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ಕೇಡಿಂದ ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯವು ಬಲವು ಮಹಿಮೆಯು ಸದಾಕಾಲ ನಿನ್ನವೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಸತ್ಯವೇದದ ವಚನವನ್ನು ಓದುತ್ತೇನೆ. ಒಂದು ವಚನ 90ನೇ ಕೀರ್ತನೆ 17ನೇ ವಚನ. 90:17. ನಮ್ಮ ಯೆಹೋವ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ನಾವು ಕೈ ಹಾಕಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮಗೆ ಸಫಲಪಡಿಸು. ನಾವು ಕೈ ಹಾಕಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಫಲಪಡಿಸು ಎಂಬುದೇ ದೇವರು ಈ ಓದಿದಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ಕೃಪೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗಾಡ್ಸ್ ಫೇವರ್, ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಆತನ ದಯೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. हमने पिछले हफ्ते में प्रभु की कृपा दृष्टि के बारे में हमने सुना है और देखा है कि किस तरह से कृपा दृष्टि, परमेश्वर की कृपा दृष्टि हमारे जीवन में आशीष को लाती है. हमने ये देखा कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि जब हमारे ऊपर होती है तो हमारे जीवनों में दैविक रूप से हमारे जनरेशन संतान की प्राप्ति होती है, ज्ञान बुद्धि की प्राप्ति होती है, आत्मिक आशीषों की प्राप्ति होती है. इतना ही नहीं, परमेश्वर की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर होने से हमारे लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट लोगों के सामने मिलता है, स्पेशल प्रेफरेंस मिलता है, हमें हाईलाइट किया जाता है. इतना ही नहीं, परमेश्वर हमारे जीवन में कितने ही बुरी परिस्थिति क्यों ना हो, उन बुरी परिस्थितियों में उत्तम से उत्तम को निकालते हैं. और हमने ये देखा है कि हर एक परीक्षाओं की घड़ी में प्रभु की कृपा दृष्टि जो है हमारे जीवनों में गवाही को देती है. और हमने ये भी देखा है कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि हर एक विश्वासी भाई बहन हर एक के जीवन में मिलती है. लेकिन कैसे मिलती है? जब प्रभु की अनुग्रह को हम पाकर उद्धार को पाने के बाद एक कृपा दृष्टि जो है हमारे अंदर बनाए रखने के लिए कुछ प्रयासों को करना बहुत ही ज़रूरी है, कुछ कामों को करना बहुत ही ज़रूरी है. और इस कृपा दृष्टि में बने रहना ही नहीं है, बल्कि इस कृपा दृष्टि में हमें बढ़ते जाना है. वी हैव टू इंक्रीज इन द गॉड्स फेवर. सो आज हम बताएंगे, देखेंगे कि हम किस तरह से परमेश्वर की कृपा दृष्टि जो हमारे ऊपर है इसके अंदर हम कैसे बढ़ते जाए. हाउ टू इंक्रीज इन द गॉड्स फेवर. परमेश्वर के अनुग्रह में या परमेश्वर की कृपा दृष्टि में हम कैसे बढ़ते जाए. लूक उसका 2 अध्याय 52वें वचन में हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह जो है, वचन ये कहता है कि यीशु मसीह बुद्धि में और शारीरिक रूप में बढ़ते गए और साथ में परमेश्वर की कृपा दृष्टि में, मनुष्य की कृपा दृष्टि में उनके ऊपर थी. द फेवर, ही वॉज ग्रोइंग इन द फेवर ऑफ गॉड एंड इन द फेवर ऑफ मैन. ये पढ़ते हुए बच्चे के बारे में, यीशु मसीह जब बचपन से जब बढ़ रहा था उसके बारे में लिखा गया है. 1 सैमुएल 2 अध्याय 26वें वचन के अंदर हम देखते हैं कि सैमुएल ऑल्सो ग्रीव इन द फेवर ऑफ गॉड एंड विथ मैन. परमेश्वर की कृपा दृष्टि में और मनुष्य की कृपा दृष्टि के अंदर भी सैमुएल बढ़ता गया करके देखते हैं. सो हाउ दे इंक्रीज, किस तरह से वे बढ़े. हम लोग ये देखेंगे कि उनके जीवन में परमेश्वर ने किस तरह से अपने अनुग्रह को, अपनी कृपा दृष्टि को उनके अंदर बनाए रखा, या फिर वाई गॉड्स फेवर वॉज देयर अपॉन देम, हाउ दे kept that favor in their life. उन्होंने अपने जीवन में इसको परमेश्वर की कृपा दृष्टि के अंदर रखकर उसमें अंदर कैसे बढ़ते गए. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल जस्ट शेयर अबाउट नंबर ऑफ रेफरेंसेस. बहुत सारे रेफरेंसेस है जहाँ पर गॉड्स फेवर यानी कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि तब होती है. ऐसे वचन जो है हमारे अंदर दिए हैं, बहुत सारे दिए हैं. मैं 3 बातों को आपके सम्मुख में रखना चाहूँगा.
तीन बातों को जब रखते समय पर ये तीन बातें हमारे जीवन के लिए, आत्मिक जीवन और हर तरह के जीवन के लिए बहुत ही प्रामुख्य है। हाउ डज द गॉड्स फेवर इंक्रीजेस इन आवर लाइफ? कैसे परमेश्वर की कृपा दृष्टि हमारे अंदर, हमारे जीवन में बढ़ती है? पहला, इट इज इंक्रीज्ड बाय लिविंग इन द गॉड्स प्रेजेंस। परमेश्वर की कृपा दृष्टि हमारे जीवन में बढ़ती है कब पता है? जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में अपने जीवन को जीते हैं। इन अदर वर्ड्स, आई कैन पुट इट इन दिस थिंग इज डेवलपिंग एन इंटीमेसी विद गॉड। परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध को हम बनाना बहुत ही जरूरी है। इस घनिष्ठ संबंध में जब हम बने रहते हैं, प्रभु की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहती है। When we are intimated with God, God's favor is always upon us. मत्ती उसका 6वां अध्याय 6 वचन में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के बारे में कहते समय ये कहते हैं कि तुम गुप्त में जाकर अपने पिता से प्रार्थना करोगे तो वो प्रभु परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर तुम्हें उत्तर देगा, लेकिन लोगों के सामने, सभी के सामने जो है तुम्हारी पुकार को सुनेगा और तुम्हें रिवार्ड देगा करके कहता है। तो उतना ही नहीं बल्कि हम ये कह सकते हैं कि प्रभु के साथ में जो उपस्थिति में जो लोग समय बिताते हैं उनका जीवन में जो है हमेशा ये परमेश्वर की अनुग्रह बनी रहती है। दोनों के जीवनों के बारे में हमने अभी देखा है। सैमुएल जो है परमेश्वर के अनुग्रह में कैसे बढ़ते गए पता है? बिकॉज ही वॉज सर्विंग इन द टेम्पल ऑफ गॉड। सैमुएल बचपन से ही उनकी माँ हैना ने उनको अर्पण कर दिया, तो उनके परमेश्वर के मंदिर में ही वो काम किया करते थे। क्या काम करते थे? हो सकता है कि चर्च को साफ करना, सब मंदिर को अच्छी तरह से साफ कर रखना, परमेश्वर के भवन में जो है अपना सब समय बिताना, वचन में पढ़ना, प्रार्थना करना, यही समय होगा उनका, वही करते रहेंगे। तो ऐसे समय पर इनके ऊपर कृपा दृष्टि ज्यादा बढ़ती गई। हाउ वॉज ही डूइंग? किस तरह से कर रहे थे? He was very sincere in his work. अपने कामों में बहुत ही सिंसियर थे और एली के बहुत ही आज्ञाकारी थे। एली जो वहाँ पर जो याजक था, उनकी आज्ञाकारिता में उन्होंने जीवन बिताया। कैसे मालूम पड़ता है? जब रात को समय मध्य रात्रि में एक आवाज आती है सैमुएल सैमुएल कहकर, तो सैमुएल जो है तुरंत उठकर एली के पास पहुंच जाता है। मतलब इतना दीन है, इतना कमिटेड है अपने काम के लिए और अपने जो बॉस है एली उनके प्रति, कि रात को नींद में भी उनकी आवाज सुनते, उनके शब्दों को सुनकर वो तुरंत वहां पर पहुंच गया। बाद में एली बताता है कि ये मैंने नहीं पुकारा, बल्कि परमेश्वर ने तुम्हें पुकारा है, और इसलिए तुम ये कहना कि तेरा दास सिद्ध है, तेरा दास तैयार है, तुम उससे बातें कर। और उसके बाद हम जानते हैं कि किस तरह से सैमुएल जो है इस्राएलियों का याजक बन गया करके हम देखते हैं। सो हाउ ही इंक्रीज्ड इन द गॉड्स फेवर बाय रिमेनिंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताने के द्वारा। इवन यीशु मसीह के बारे में जब हम देखते हैं, 12 साल की उम्र में ही उन्होंने परमेश्वर के मंदिर यरूशलेम में आकर सभी लोगों के सामने, सिनागोग में जाकर के जो है सभी लोगों के सामने यशायाह की स्क्रॉल को लेकर उन्होंने पढ़ा और पढ़कर ये कहा कि जो भविष्यवाणी लिखी गई है, ये भविष्यवाणी आज पूरी होती है। जैसे उन्होंने कहा, सब लोग चौंक गए वहां पर, शास्त्री, फरीसी, सभी लोग। लेकिन यीशु मसीह को एग्जैक्टली वही स्क्रोल, वही यशायाह का वचन, वही सारे चीजें, वही कोट उनको कैसे मिला? हाउ डिड ही गॉट इट? बिकॉज ही वॉज अ गॉड? नो, नॉट ओनली दैट, बट ही वॉज मेडिटेटिंग ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। वो अपने परमेश्वर के उपस्थिति में, परमेश्वर के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट में, घनिष्ठ संबंध में हो रहे थे, इसीलिए उनको सब पता था। और उस वजह से उन्होंने जो है वो वचन जो उन्होंने पाया उसे पूरा हुआ करके कहने लगे। हर बार लोगों के सामने आते समय पर जो है परमेश्वर की उपस्थिति को उन्होंने अपने जीवन में पाया है। परमेश्वर के साथ जो संबंध है, पिता का संबंध, लोगों के सामने हमेशा दर्शाते आए हैं। सो प्रेजेंस ऑफ गॉड is very important to obtain the favor of God. परमेश्वर के उपस्थिति में अपने जीवन को बिताने के लिए प्रभु की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर होती है। प्रिय लोगों, निर्गमन में हम देखते हैं कि जब परमेश्वर इन सारे मिस्र के देश के लोगों को जब पूरी तरह से उनके ऊपर अटैक कर रहे थे सारे चीजों से, तो इजरायली कहाँ पर थे? इजरायली जो है एक ऐसे स्थान पर थे जिसका नाम है गोशेन।
गोशेन का मतलब होता है टू ड्रॉ नियर टू गॉड, परमेश्वर के करीब रहना। तो ऐसे स्थान पर उन लोग थे, परमेश्वर के करीब थे। इसी वजह से परमेश्वर की कृपा दृष्टि उनके ऊपर हो गई। बाकी सभी लोग जो है नाश हो रहे हैं, लेकिन ये सुरक्षित थे क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में रहने की वजह से परमेश्वर की कृपा दृष्टि उनके ऊपर बहुत ऐसे हो रही थी। तो आज मेरे और तुम्हारे जीवन के अंदर भी परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम रहेंगे, परमेश्वर की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर होगी। यूसुफ के जीवन के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से हमने कल गए बार सुने हैं, हम सभी लोग जानते हैं। द की वर्स इज दैट, द की नोट ये है उनके अंदर, उत्पत्ति 39 दूसरा वचन, उत्पत्ति उसका 41, उत्पत्ति उसका 42, इन सारे वचनों के अध्याय के अंदर एक हम कीवर्ड्स पाते हैं, द लॉर्ड वॉज विथ जोसेफ, द गॉड्स प्रेजेंस वॉज विथ जोसेफ। यूसुफ के साथ परमेश्वर की उपस्थिति बनी रही कहकर, और इसी वजह से हर एक कामों के अंदर परमेश्वर की कृपा दृष्टि उनके ऊपर बहुत ऐसे होने लगी। सो वेरी सिंपल थिंग आई कैन से, गॉड्स प्रेजेंस ब्रिंग्स गॉड्स फेवर इन आवर लाइफ। परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर की कृपा दृष्टि भी होती है। सो इसीलिए आज मैं और आप अपने जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को जिए। एक संदेश में मैंने बताते समय ये भी कहा है कि मसीही जीवन को अगर जीना है तो कैसे जीना है पता है, लिविंग गॉड कॉन्शियस लाइफ, यानी कि परमेश्वर हमारे जीवन में है, ये कॉन्शियस रखना है। हमेशा ये सोचते रहना है कि परमेश्वर की उपस्थिति में मैं हूँ, चाहे वो घर पे हो, चाहे वो बाहर हो, चाहे मोबाइल ऑपरेट करते हो या लैपटॉप पे काम करते हो, स्कूल जाए या फिर कॉलेज जाए, जहां पर भी जाए, ये बात मन में रख लेना है कि परमेश्वर हमें देख रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति हर एक जगह पर है, और इसीलिए उस कॉन्शियस होकर के मैं अपने जीवन को जीना बहुत ही जरूरी है। उदाहरण के लिए बेस्ट एग्जाम्पल आता है, आज हम लोग सभी लोग जूम पर या गूगल मीट पर जब बैठे रहते हैं, उनके क्लासेस के टीचर्स बोलते हैं तुम वीडियो ऑन रखो। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं उनको पता चलना है। वीडियो ऑन रख करके उनको पता चलता है, अगर वीडियो ऑफ रखेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये कॉन्शियसनेस जो है कुछ इसी तरह से है, हम अपने लाइफ को हमेशा अपने दिमाग को ये खोल के रखना है, वीडियो ऑन करके रखना है, ऑडियो ऑन करके रखना है कि परमेश्वर मुझे देख रहा है, गॉड इज लुकिंग एट मी। सो गॉड कॉन्शियस लाइफ विल ऑलवेज हेल्प अस टू लिव in the God's presence, and the God's presence will bring the God's favor. There are a couple of verses, कुछ verses है जो मैं बताना चाहूँगा कि God's presence helps us to live a righteous life. परमेश्वर की उपस्थिति हमें धार्मिकता का जीवन जीने के लिए मदद करती है, और जो धार्मिक होते हैं उन्हीं के ऊपर प्रभु की कृपा दृष्टि होती है। साम्स 79 उसका 11वां वचन, Psalms 89 verse 11, Psalms 5 verse 12, भजन संहिता 5:12, ये सब कहता है परमेश्वर धार्मिक के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि को करता है। दूसरा, परमेश्वर की उपस्थिति जो है हमें उनकी आज्ञाओं को मानने के लिए हमें मदद करती है। और वचन ये कहता है, वो नीति वचन उसका 3 अध्याय 3 वचन से 4 वचन तक, कि जिनके ऊपर परमेश्वर की कृपा दृष्टि होती है, कौन है पता है? जो लोग परमेश्वर के वचन को, आज्ञाओं को मानते हैं। तीसरा, उसी में परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में एक अच्छा कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए मदद करती है। गुड कैरेक्टर जो है हमारे जीवन में बनाए रखते हैं परमेश्वर की उपस्थिति। जो गुड कैरेक्टर के लोग होते हैं उन्हीं के ऊपर परमेश्वर की कृपा दृष्टि होती है। Proverbs chapter 12 verse 2, Proverbs chapter 12 verse 2, नीति वचन 12 उसका 2 वचन के, those who are good, God shows His favor. चौथा, God's presence helps us to pray to the Lord. परमेश्वर की उपस्थिति में हम जब रहते हैं, हमेशा हम परमेश्वर को स्तुति करते हैं और उनको पुकारते हैं। जब पुकारते हैं वो मेरी पुकार को सुनता है। Exodus chapter 2, निर्गमन उसका 2 अध्याय 23 से 25 तक जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इस्राएलियों ने बहुत ही दुख होकर परमेश्वर को जब पुकारा, तो परमेश्वर का वचन वहाँ पर यह कहता है कि परमेश्वर ने उनके तरफ चिंता जताई और उनके ऊपर दया की दृष्टि की कर। उतना ही नहीं, अय्यूब अपने जीवन में जब सब कुछ हो गया था, लेकिन परमेश्वर की कृपा दृष्टि उनके ऊपर रहने की वजह से वो विश्वास में रह पाए। God's presence is very important. God's presence is
makes us to live a humble life. हम अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति हमें नम्रता के जीवन को जीने के लिए मदद करते हैं, और जो नम्र है उन्हीं के ऊपर परमेश्वर की कृपा दृष्टि होती है. So all these things, if you club it together in one sentence, we can say is this: develop an intimacy with God and increase God's favor. अपने जीवन में परमेश्वर के उपस्थिति में परमेश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध को बढ़ाए और प्रभु की कृपा दृष्टि को अपने जीवन में लेकर आए. The second way of increasing God's favor, दूसरे तरीके से जो हम परमेश्वर की कृपा दृष्टि को अपने जीवन में बढ़ा सकते हैं, कैसे पता है? By the good stewardship of favor. Listen to this. By the good stewardship of favor. What is this stewardship? Stewardship का मतलब क्या है? भंडारीपन. भंडारीपन मतलब ये होता है कि विश्वास योग्यता से जो परमेश्वर ने मेरे अंदर कृपा दृष्टि की है मेरे ऊपर, वो कृपा दृष्टि के द्वारा पाए हुए सारी आशीषों को मैं और लोगों के अंदर इन्वेस्ट करूं, परमेश्वर के लिए इन्वेस्ट करूं. इट ऑलवेज वर्क्स लाइक दिस. ये किस तरह से काम करता है पता है? जो हम बोते हैं वही काटते हैं. मतलब अगर हमने 10% बीज बोए हैं तो 10% का कितना निकलेगा? 100 गुना निकल तो उतना हम पाएंगे. So as you sow, so you will reap. जैसे आप बोएंगे वैसे ही आप काटेंगे कहकर. तो ठीक उसी तरह से परमेश्वर की कृपा दृष्टि मेरे ऊपर है तो मैं लोगों के ऊपर कृपा दृष्टि करना है और उनको ब्लेस करना है. परमेश्वर के सेवकाई के अंदर जो है मेरे हाथों को बटाकर उनको आशीष देना है. When I do this, जब मैं करता हूँ, परमेश्वर की कृपा दृष्टि मेरे अंदर जो है बढ़ते जाते हैं. राजा हेजेकिय्याह जो है बहुत ही सक्सेसफुल राजा था. हाँ, सक्सेसफुल राजा था, लेकिन एक वचन उनके बारे में लिखा गया है, मैं भी देखकर थोड़ा दंग रह गया. दूसरा इतिहास उसका 32वां अध्याय 25वें वचन के अंदर, 2 क्रॉनिकल चैप्टर 32 वर्स 25, यहाँ पर क्या कहता है पता है वचन? बट हेजेकिय्याह डिड नॉट रीपे फेवर एज ही रिसीव्ड फ्रॉम द गॉड. उन्होंने परमेश्वर की कृपा दृष्टि को जिस तरह से उनके जीवन में पाया था उसके अनुसार उन्होंने जो है नहीं दिया, जिस वजह से परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़क गया करके वचन कहता है. बाद में हेजेकिय्याह जो है इसके लिए पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर ने क्षमा कर दिया. बट इम्पोर्टेंट थिंग इज दिस दैट ही डिड नॉट पे द फेवर ऑफ गॉड एज इज रिसीव्ड. जिस तरह से उन्होंने पाया उसको उन्होंने उस तरह से नहीं दिया है. प्रिय लोगों, आज मैं और आप अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की कृपा दृष्टि को अलग अलग तरह से अनुभव किए हैं, अलग अलग तरह से हमने पाए हैं. क्या है पाए हैं वो? द फेवर ऑफ वेल्थ. आज बहुत सारे लोगों के पास काफी पैसे हैं, संपत्ति हम लोग बनाए हैं. गिव गॉड, परमेश्वर को दीजिए, मिशंस के लिए दीजिए, गरीबों के लिए शेयर कीजिए. इन्वेस्ट दोस थिंग्स इन दोस पीपल. फेवर ऑफ विजडम, बुद्धि और ज्ञान का हमने भंडार को पाया है, उसे और लोगों को बांटे और लोगों को दे, दूसरों को जो है सिखाए. वचन में अगर आप अच्छे हैं तो दूसरों को वचन सिखाए. बहुत सारे तलांत हमारे अंदर दी हैं, ये सारे तलांतों को जो है परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करे. केवल ऐसे ना करे कि हम बोस्ट करें, यानी कि केवल घमंड ना करे. हेजेकिय्याह ने केवल घमंड किया और जिस वजह से जो है उनको उसका नतीजा भुगतना पड़ा. आज भी हम में से बहुत सारे लोग हम सिर्फ घमंड करते हैं कि मैं एक अच्छा वर्शिप लीडर या फिर वर्शिप करता हूँ, मैं एक अच्छा प्रीचर हूँ, मैं एक अच्छा टीचर हूँ. लोगों के सामने हम दिखाने का या फिर घमंड करने का घमंड करते हैं. बट नॉट लेट अस नॉट डू द घमंड, बट ये कहें कि लॉर्ड आई एम थैंकफुल टू यू फॉर ऑल दिस थिंग, बट आई वांट टू इन्वेस्ट इन यू. प्रभु मुझे मौका दे, उस नम्रता से, उस दीनता से इन सारी बातों को मैं इन्वेस्ट करूं. जो फेवर मुझे मिला है, इन सारे फेवर की वजह से मैं आपके अंदर इन्वेस्ट करना चाहता हूं. थोड़े से गवाहियों को मैं देना चाहूँगा. पहले जो है हम देखते हैं कि सारे जितने भी मिशनरीज थे, अगर सोचिए वो सारे मिशनरीज हमारे गाँव के तरफ, गुलबर्गा, यादगीर, रायचूर, ये सारे बेल्ट के अंदर टाटा सीमेंट जैसे मिशनरीज आकर के उन्होंने अगर इन्वेस्ट नहीं किया होता अपना टाइम, अपना टैलेंट, अपने वेल्थ, कितने सारे प्रॉपर्टीज उन्होंने बनाए, स्कूल्स खोले, बोर्डिंग्स हॉस्टल्स खोले, और इतना ही नहीं हॉस्पिटल्स खोले,
और इधर पे आकर वो सेवा भी उन्होंने किया। वो करने के वजह से उन्होंने इन्वेस्ट करने का उनको जो फेवर मिला, वो फेवर को इधर पे उन्होंने इन्वेस्ट करने की वजह से आज हम इतने सारे लोग आश्रित पाए हैं। कई लोग पासबान हैं, कई लोग इंजीनियर हैं, कई लोग डॉक्टर हैं, कुछ लोग फॉरेन में हैं। wherever we are there, but you know why it has happened? Because missionaries have invested their favor in us. हमारे अंदर उन्होंने इन्वेस्ट किया है। रिसेंटली कुछ सालों के पहले की बात है, एक कोरियन लेडी ने, एक मेंबर ने, चर्च मेंबर ने अपने रिटायरमेंट की पूरी संपत्ति, पूरे पैसों को जो है उन्होंने इंडिया के अंदर, हमारे बॉम्बे शहर के अंदर एक चर्च को उन्होंने डोनेट किया, चर्च बनाने के लिए। व्हाट वाज द नीड, क्या ज़रूरत थी? मेरे दिल में, मेरे मन में हमेशा वो बनी रहेगी वो बात कि उन्होंने पूरे रिटायरमेंट की अपनी संपत्ति को एक चर्च बनाने के लिए उन्होंने दे दिया। वाई? बिकॉज इट वॉज नीडेड। शी वॉज थिंकिंग दैट इज द इन्वेस्टमेंट फॉर हर। एंड रिसेंटली कुछ एक साल पहले की बात है, एक सर आकर मुझसे कहा कि आया हम इतना कुछ देना चाहते हैं मिशनरीज के लिए। बड़ा अमाउंट था, बोलूँगा नहीं, उनका नाम भी नहीं बोलूँगा, बट ही गेव दैट इन्वेस्टमेंट एज अ मिशनरी इन्वेस्टमेंट, मिशनरी के जीवन में। पिछले महीने में एक माँ आकर मुझे कुछ रुपए देकर कहा कि आया ये सारे गरीब मिशनरीज को, जो भी लोगों को अन्नदान नहीं मिलता, उनको आप दीजिए कहकर उनको मैंने देकर मिशनरी संस्थाओं को मैंने भेजा है। प्रिय लोगों, दिस इज द वे दैट वी नीड टू इन्वेस्ट। परमेश्वर ने मुझे उनकी कृपा दृष्टि दी है, तो आज मुझे जो है ये इन्वेस्ट करना है। वॉट एवर इट इज, नॉट ओनली जस्ट अबाउट द मनी, केवल पैसों के बारे में ही नहीं, बल्कि हर एक चीज जो आप लोग कह रहे हैं ना परमेश्वर की कृपा दृष्टि से मिली है, इन सारी बातों को इन्वेस्ट करना बहुत ही जरूरी है। थर्ड वे ऑफ इंक्रीजिंग द गॉड्स फेवर इज दिस, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल इट इज। बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिंपल है। क्या है? फेवर इज इंक्रीज्ड बाय द प्रोक्लेमेशन ऑफ ब्लेसिंग। आशीषों की घोषणा करने के द्वारा हमारे जीवन में कृपा दृष्टि बढ़ती है। आशीषों को घोषणा करने के द्वारा हमारे जीवन में कृपा दृष्टि बढ़ती है। अवर वर्ड्स हैव पावर, हमारे शब्दों में बहुत ही ताकत है, क्योंकि ये ताकत किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तुम जिनको आशीष दोगे मैं उन्हें आशीष दूंगा, तुम जिन्हें श्रापित करोगे मैं उन्हें श्रापित दूंगा। ये टंग में उतना पावर है कि अगर हम पॉजिटिव वर्ड्स कहते हैं तो पॉजिटिव इफेक्ट होता है, नेगेटिव वर्ड्स के अंदर नेगेटिव इफेक्ट्स कई बार होता है। हम जितना लोगों को चोट पहुंचाते हैं, मारने से ज्यादा शब्दों से चोट पहुंचा देते हैं। सो इट हैज पावर, द वर्ड्स हैव द पावर। यू नो दिस वर्ड्स, दिस माउथ हैज टू बी यूज्ड टू ब्लेस द पीपल एंड आस्क गॉड्स फेवर अपॉन द पीपल। लोगों के जीवनों में आशीष की घोषणा करना है और उनके जीवन में परमेश्वर की कृपा दृष्टि की घोषणा करना है। वन स्पेशल इंस्ट्रक्शन, एक बहुत ही स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया गया था सारे इजराइलियों को। इसे हम कहते हैं याजकों की आशीष। हम इसे पाते हैं गिनती उसका 6वां अध्याय 23 से 26 वचन में। ये वचन के आधारित पर गीत भी बनाया है, हमने कुछ सुना है कुछ लोगों को। द लॉर्ड ब्लेस यू, द लॉर्ड कीप यू, द लॉर्ड मेक हिज फेस शाइन अपॉन यू, सो दे shall put my name on the children of Israel and I will bless them. प्रभु तुम्हें आशीष दे, प्रभु तुम्हें संभाले, प्रभु अपना चेहरा तुम्हारे ऊपर रोशनी करे और तुम्हें हमेशा तक आशीष देता रहे। ये जो शब्द है ये हर एक इजरायली व्यक्ति लोगों को कहना बहुत ही जरूरी था। सो टुडे एज वी आर एंडिंग द प्रेयर, प्रार्थनाओं में बेनेडिक्शन और ब्लेसिंग्स के बिना हम नहीं करते हैं, देते हैं। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की कृपा दृष्टि को हम पाते हैं। पौलुस जो अपनी पत्रिकाओं को अंदर हर एक के अंदर जो है उनका एक पैटर्न है। क्या पैटर्न है? एक कंटेंट के अंदर ये पैटर्न होता है। पहला ग्रीटिंग, यानी कि सबको नमस्कार करते हैं। दूसरा उनका अप्रिशिएट करते हैं कामों को, उनके विश्वास को। तीसरा उनके अंदर जो कमी है उसको रिब्यूक करते हैं, करेक्ट करते हैं। चौथा लास्ट जो है उनको ब्लेसिंग और बेनेडिक्शन देते हैं। ही एंड्स ऑलवेज विद द ब्लेसिंग एंड बेनेडिक्शन। प्रोक्लेमिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोक्लेमिंग ऑफ ब्लेसिंग। तो आज हमारे अंदर कृपा दृष्टि को बढ़ाना है तो लोगों के अंदर आशीष घोषणा करें, हम अपने आप के अंदर भी आशीष को घोषणा करें। एक उदाहरण देकर मैं समाप्त करना चाहूँगा। एक पास्टर जो है एक बार
इसी तरह से प्रार्थना करने के लिए सभी को इकट्ठा किया। मैसेज के बाद सब लोग आकर प्रार्थना करा रहे थे। एक व्यक्ति आकर कहा कि भैया हमारे लिए प्रार्थना करें क्योंकि मेरा बिजनेस पूर्ण रूप से डाउन हो चुका है। जब उन्होंने कहा कि ठीक है, देख करके उनको देखा और उन्होंने एक वर्ड यूज किया, लॉर्ड लेट योर फेवर बी अपॉन हिज बिजनेस। परमेश्वर आपकी कृपा दृष्टि इनके बिजनेस के ऊपर होवे कहकर प्रार्थना किया और समाप्त कर दिया। समाप्त होने के बाद जो है वो चले गए, लेकिन कुछ समय 1 साल के बाद वो आते हैं वापस पास्टर के पास मिलने के लिए और पास्टर को भेंट अर्पण करके कहते हैं कि भैया ये चर्च के लिए हम देना चाहते हैं। और उन्होंने परमेश्वर के लिए भेंट को अर्पण किया और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि आपने जो गए, उनको पूछा पास्टर ने आप कैसे हैं, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा है और मेरा बिजनेस एकदम बहुत ही अच्छा चल रहा है। कैसे पता है पास्टर साहब? क्योंकि आपने उस टाइम पर ये प्रार्थना की। कौन सी प्रार्थना? परमेश्वर की कृपा दृष्टि की घोषणा आपने हमारे ऊपर की, मेरे बिजनेस के ऊपर की, इसीलिए मैं फ्लरिश होते गया कहकर उन्होंने कहा। सो गॉड्स फेवर, प्रोक्लेमेशन ऑफ गॉड्स फेवर विल बी इंक्रीज इन आवर लाइफ। जब हम परमेश्वर के आशीष को घोषणा करते हैं, हमारे अंदर उनकी कृपा दृष्टि बढ़ती है। तो आइए हम इस समय ये कहेंगे, लॉर्ड आई वॉन्ट टू इंक्रीज इन योर फेवर। परमेश्वर तेरी कृपा दृष्टि में मुझे बढ़ाते जा। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हुए आपके सम्मुख आते हैं। आपकी कृपा दृष्टि हमारे जीवन में हमेशा बढ़ते जाए, आपकी उपस्थिति के द्वारा बढ़ते जाए। हमारे कृपा दृष्टि को हम आपकी सेवा में और लोगों के अंदर इस्तेमाल करने के द्वारा बढ़ते जाए। लोगों के जीवनों में आशीष घोषणे के द्वारा आपकी कृपा दृष्टि हमारे जीवन में बढ़ते जाए। आपकी कृपा दृष्टि में हमें बनाए रख और बढ़ाते जाइए। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। क्विक अनाउंसमेंट सभी के लिए। हमारा संडे सर्विस जो है इसी तरह से सुबह 11 बजे यूट्यूब लाइव के द्वारा चलाया जाएगा। बुधवार की आराधना फेसबुक लाइव के द्वारा 8 बजे चलाई जाएगी। एम्बाया फॉर TCF संडे को शाम को 6 बजे जूम पर चलाई जाएगी। और बाकी सारे जैसे रिस्ट्रिक्शंस है खुले हैं, लेकिन चर्च को खोलने की अभी तक हमें पाबंदी है। इसलिए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर जल्द से जल्द इसे खोले और हमें निर्णय लेने में मदद करें। और मैं इस समय सभी को बधाई देना चाहता हूँ, खास तौर से हमारे 12th जो ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಸ್ हुए हैं, ಎಲ್ಲ 12th ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ। ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಬರಲ್ಪಟ್ಟುಂಟು। ಅದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕರಿಯರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ। ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ तोलिल्ला दयमाड़ी वैक्सीन तोड़ी। जितने लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है कृपया वैक्सीन लीजिए। अगर इसमें किसी को ज़रूरत है, मदद चाहिए, फ्रांसिस अंद्रिकी या फिर जस्टिन खोट्रिक, इनको आप कांटेक्ट करें, वे लोग आपको मदद करेंगे। और ये BMC की तरफ से ही दिया जा रहा है। तो इस वैक्सीन को आप लीजिए और परमेश्वर की कृपा दृष्टि के अंदर आप बढ़ते जाएं। सो गॉड ब्लेस अस ऑल। परमेश्वर हम सभी को आश्रित करें। आइए हम आखिरी प्रार्थना और वचन, आशीष वचन हम लेंगे। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್। ಯೇಸುವೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೆನ್। ಹೇ ದಿವ್ಯವಾದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾ ಬದಲೇನು ಕೊಡುವೆ, ಸಂಪತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಯಾವರ್ತು ಕೊಟ್ಟಾಗ್ಯೋ ಏನು ಸಾಲದು, ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಕಾಪಾಡಲಿ. ಯೆಹೋವನು ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯವಿಡಲಿ. ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷವಿಟ್ಟು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ತಂದೆ, ಮಗ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ತ್ರೇಕ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು
ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ನೆಂದಿಗೂ ಸದಾಕಾಲ ನೆಲೆಯಾಗಿರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. Praise the Lord. God bless you. नाराजगी में करे तू देरी, प्यार से ढाके मेरी गलतियां, रखे मुझको अपने पंखों तले, हर आंधी में हर तूफान में, जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया, तू ही है मेरा सहायक पिता।